Hello students, hello class 9. I am back with your new video students of the subject social science students chapter 13. So what is the name of the chapter 13? And that is India about location, geological structure and physiography. So in this topic we will discuss about only the India. And what is the hold about India, what are the location, what are the geological structure and how that has been physiography. So let's start it students. We should start it out because we don't have to waste our time students, because time is very much essential. So let's get started students. Our subject social science chapter number is 13. India, location, geological structure and physiography students. Okay, so let's begin. India holds a unique position among the countries of the world. India is a country having largest democracy and its culture is one of the oldest in the world. It has the largest democracy in the world. The coordinating attitude of our culture has not discarded any religion, race or people, but has accepted them wholeheartedly. Thus, impartiality towards all religions, people and races is the peculiar characteristic of India. That is why India has become a cultural confluence. Even though many natural and man-induced disasters have taken place, India has constantly continued her progress. The geographical conditions have contributed immensely towards the development and progress of Indian culture students. So students, इसमें ये बोला जा रहा है कि India is having a very good position among the countries of the world. पूरे world में India is having a very good position and India is the country where having a large democracy and the oldest culture in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट कल्चर हमारा इंडिया का ही है स्टूडेंट्स, एंड इट हैज़ बीन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. And the coordinating attitude of the culture, like any religion, कोई भी religion क्यों ना हो, कुछ भी race हो या कोई people acceptable हो, सारे के सारे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से accept करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से खुशी से रहते हैं. वो कोई भी religion के क्यों ना हो स्टूडेंट्स, बट इंडिया में जो रहते हैं वो सारे के सारे religion साथ में रहते हैं. इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस भी बोला जाता है, क्योंकि सारे कल्चर्स को इंडिया बहुत अच्छे से मानते हैं स्टूडेंट्स. इवन दो देयर आर मेनी नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर या फिर मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर हुए हैं इंडिया में, बट वो सब से भी बहुत ईजिली जल्द से जल्द प्रोग्रेस कर लिया है इंडिया ने स्टूडेंट्स. एंड जोग्राफिकली कंडीशंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में और ज़्यादा डेमोक्रेटिकली डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा एक अच्छा भागीदारी इंडिया को बोला गया है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं स्टूडेंट्स. सो इसके बाद आप देख सकते हो ये पिक्चर, वर्ल्ड मैप, इंडिया इन द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स कहाँ पे है इंडिया, आप बता सकते हो? एशिया में, राइट. एशिया में कहाँ पे है, यहाँ पे है इंडिया स्टूडेंट्स. सो इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. ये वाइट वाला आप जो देख रहे हो वो हमारा इंडिया है स्टूडेंट्स, एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन स्टूडेंट्स. ओके, एशिया में इंडिया यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स. ओके, so now let's begin the next topic, and that is India, location and size and area. India, location, size and area. Geographically, India lies in the northern hemisphere. It extends up to the southern part of Asian continent.
The span of the mainland of India extends from 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north latitudes and from 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east longitudes. The Tropic of Cancer, which is located at 23 degree 5 north latitude and divides the country into two parts, passes almost through the middle of India. Its northern part is spread more in the east-west direction. The Great Plains and the Himalayan mountain system are located in this part. The area to the south of Tropic of Cancer has a triangular shape and tapers towards the south. This is basically a part of the peninsular plateau. It includes the eastern coastal plains and the narrow western coastal plains. So students, geographically जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये नॉर्दर्न कहाँ तक जाता है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया तक, कॉन्टिनेंट तक जाता है स्टूडेंट्स. सो इंडिया एक्चुअली इतने डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में और इतने ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में डिवाइड होता है टू पार्ट में स्टूडेंट्स, टू पार्ट्स. ओके, पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मिडल ऑफ इंडिया में पास किया जाता है, एकदम बीचों बीच. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में स्टूडेंट्स, सी ये जो है ये बीचों बीच इंडिया के थ्रू ये लाइन जा रही है एंड दैट इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टूडेंट्स. ओके, इट्स नॉर्दर्न पार्ट हैव बीन स्प्रेड टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और यहाँ पे क्या है, हिमालय है स्टूडेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह में लोकेटेड है. जो एरिया है साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ट्राइंगुलर शेप में है जो साउथ की तरफ लोकेटेड है. दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू. ये पेनिनसुला प्लेटू का एक बहुत मेजर पार्ट है स्टूडेंट्स, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से लेकर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तक जाया जाता है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ the latitudinal as well as longitudinal extents of India are almost equal, which is about 30 degree. The length between Kashmir to Kanyakumari is 3,214 kilometer and width from Gujarat to Arunachal Pradesh is 2,933 kilometers. So students, latitudinally और longitudinally India equal है. इंडिया क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये सारे 30 डिग्री में प्रेजेंट है. तो जो लेंथ है कश्मीर टू कन्याकुमारी वो 3,214 है और वाइड मीन्स ब्रेथ है गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इज़ 2,933 किलोमीटर स्टूडेंट्स. तो there is a difference of 2 hours in the local time between the two extreme places, starting from Gujarat in the west up to Arunachal Pradesh in the east due to the longitudinal difference. So India स्टूडेंट्स, इंडिया में सिर्फ 2 घंटे की डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स. वो कहाँ पे है, वेस्ट साइड में गुजरात में और ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश में ये डिफरेंस है कि क्योंकि ईस्ट साइड में सबसे पहले सूरज उगता है तो वो 2 घंटे पहले उगता है, राइट. एंड ईस्ट साइड वेस्ट साइड में लेट से उगेगा ऑब्वियसली, तो सबसे जल्दी ईस्ट में उगता है और वेस्ट में ढलता है, इसलिए सबसे देर रात मतलब 8 बजे तक गुजरात में उजाला ही रहता है स्टूडेंट्स. आपने तो देखा ही होगा ये चीज़ ईजिली. When it is sunrise in Arunachal Pradesh, it is still night time in Gujarat. Obviously, अभी मैंने आपको ये बात बताई. The standard meridian of India is 83 degree 30 minute east longitude. It passes through 5 states. Its local time is accepted as the standard time of India. So students, ईस्ट में ग्रो होता है सन, सो दैट्स वाई ये बहुत टाइम लगता है वेस्ट तक आने में. तो वो उनको 5 स्टेट्स
पास करने होते हैं। इसके वजह से इनकी जो लोकल टाइम है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब हम लोग दूसरे पार्ट में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज हम लोग देख रहे हैं, 100 पेज नंबर ऑफ द टेक्स्ट बुक, द चैप्टर 13 सेकेंड पेज स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा मैप है, इंडिया का पूरा मैप दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो ईज़िली। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये पूरा इंडिया का मैप है स्टूडेंट्स। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप इजीली ये चीज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चाइना है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, और हमने बात किया ये गुजरात साइड और ये अरुणाचल प्रदेश साइड। तो ये इतना ब्रेथ में है, वाइट इसकी इतनी चौड़ी है हमारी इंडिया की। और देखो ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है बीचों बीच इंडिया के बीच में, राइट स्टूडेंट्स। एंड दिस वन इज़ द जम्मू कश्मीर, लास्ट लेह लद्दाख, एंड इन द लास्ट पार्ट विथ इज़ कन्याकुमारी। सो इसका क्या है, कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर स्टूडेंट्स। ओके, सो दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ। सो आप देख सकते हो, मैं आपको और एक बार ये ऐसे दिखाना चाहती हूँ, ये पूरा हमारा मैप है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर इट आउट, आपको दिख रहा होगा इजीली अब अच्छे से, क्योंकि मैंने स्ट्रेट कर दिया है। आपके पास टेक्स्ट बुक हो स्टूडेंट्स तो आप इजीली उसमें भी देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। Total area of India is 32.8 lakh square kilometer and India ranks 7th in the world in terms of area। मतलब इंडिया के पास 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और 7th रैंक में आता है हमारा इंडिया। सो फर्स्ट में कौन है, रशिया, देन कनाडा, थर्ड इज़ यूएसए, फोर्थ इज़ चाइना, फिफ्थ इज़ ब्राज़ील एंड सिक्स्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया इन द लैंड एरिया स्टूडेंट्स। लैंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे 7th रैंकिंग में हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी द थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट। So students, this one is the third page of the chapter 13 India. So let's begin the next paragraph. The land area of India lies in South Asia. In the north, lofty mountain ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east direction. That is why the commuting with Tibet and China is possible only through passes located at high altitude. Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west, and Indian Ocean to the south of Peninsula India. The sea is utilized as a waterway. Even though the land routes are obstructed by surrounding mountains, India has accepted all cultural elements arriving from outside and these have merged into Indian society. So students, जो इंडिया की लैंड एरिया है वो साउथ एशिया में आता है। इंडिया में नॉर्थ साइड में बहुत लॉफ्टी माउंटेन्स है जो 100 ऑफ किलोमीटर्स में स्प्रेड है वेस्ट टू ईस्ट साइड में। सो इसलिए तिब्बत और चाइना पॉसिबली हमारे हाई एल्टीट्यूड में नेबर्स है, नेबरिंग कंट्रीज़ है। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और साउथ साइड में इंडियन ओशन हमारे इंडिया में है। और ये जो सी है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड है हमारे वाटरवेज़ में। वाटरवेज़ के थ्रू हमारे बहुत सारी ट्रैवलिंग्स होती है, राइट, क्योंकि जो लैंड रूट्स है वो बहुत ज़्यादा सराउंडेड है माउंटेन्स के लिए, माउंटेन्स के थ्रू बहुत सारे सराउंडिंग है। तो इसलिए जो वाटरवेज़ है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, यूज़फुल है हमारे लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को बाहर या अंदर आना हो तो वाटरवेज़ के थ्रू इजीली आ सकता है और वो इंडियन सोसाइटी के साथ मर्ज हो सकता है स्टूडेंट्स।
सो आप अपने स्क्रीन में अब देख सकते हो ये पूरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। देखो ये आप क्लियरली देख सकते हो पूरा कितने सारे पोर्ट्स है, बैंकॉक, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, दीज ऑल वेयर कनेक्टेड बाय एयर रूट और सी रूट। हमारे इंडिया में सारे के सारे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। जापान, टोक्यो, ये सब के सब कनेक्टेड है हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ गुड इनफ, राइट। अच्छी बात है कि हमें कहीं पे ट्रैवल करना होगा तो हमें we are having a very lot of ways for traveling students. Now let's begin the next part. India holds a strategic location in Eastern Hemisphere and it has a strategic importance also. India is in the Eastern Hemisphere. Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in ancient times. India had trade relation with East Africa, West Asia, South Asia, Southeast Asia since ancient times. India had developed cultural and trade relations with them due to her location. No country in the Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Due to this strategic location, the ocean is named as Indian Ocean. So students, क्या बात हुई, इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी एडेड है और ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी होता है स्टूडेंट्स। सो इंडिया का लोकेशन बहुत अच्छा है स्ट्रैटेजिकली स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो ओशंस के बहुत ज़्यादा तीन ओशंस हमारे इंडिया में है, राइट। और इंडिया की ट्रेड रिलेशन ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे बहुत पुराने टाइम से इंडिया के साथ इनके काम चल रहा है स्टूडेंट्स, because they are having a very good relation, cultural and trade relation with their neighbors due to her location. ये जो इतनी अच्छा लोकेशन है इसके वजह से, एंड ये जो कंट्री है, जो इंडियन ओशन है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोकेशन में है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज तीनों जगहों से कनेक्टेड है, इसलिए ये ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया। आप इधर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये रहा इंडियन ओशन, तो ये हर जगह से कनेक्टेड है, राइट। आप देख सकते हो हर जगह से ये कनेक्टेड है, इसलिए ये लोकेशन की वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है स्टूडेंट्स। Location of India across the international waterways is also important. With the opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe has reduced by about 7,000 kilometers. Sea routes connecting East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. The Karakum African Waterway and Suez Canal Waterway pass by India. Canada and USA can be reached through the same waterway via Strait of Malacca and the Pacific Ocean. So students, India's location is very much good in the international waterways and that is very much important. While opening the Suez Canal in 1869, India and Europe distance were reduced. How many kilometers? 7,000 kilometers were reduced. So sea route have connected Southeast Asia to Australia to Africa and Europe also with the help of the Indian Ocean students. So the waterways and the Suez Canal waterway pass by India. तो ये जो करकुम अफ्रीकन वाटरवे है और स्वीज कैनाल है, ये दोनों वाटरवे इंडिया के थ्रू ही जाता है स्टूडेंट्स। सो कैनेडा and USA have been reached the same waterway while Strait of Malacca and the Pacific Ocean. जिस तरह पे कनाडा और USA में भी होता है स्ट्रेट मलक्का और पैसिफिक ओशन कनेक्टेड है, वैसे ही इंडिया में भी है स्टूडेंट्स।
India has contacts with many countries since many centuries. Goods and ideas are being exchanged since ancient times. Similarly, concepts of Upanishads, stories of Ramayana and Panchatattva, therapeutic methods, Indian numerical figures and decimal system, etc., could reach many parts of the world. India has an important location in South Asia. There are 29 states, a national capital territory and 6 union territories in India, students. We know that one very well because we all are Indians, that's why. So students, इंडिया इज़ हैविंग अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद द अदर कंट्रीज़. उनके बहुत सारे अदर कंट्रीज़ से अच्छे रिलेशन है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि उनके गुड्स और आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं बहुत पहले पुराने ज़माने से स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि जो अदर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके हमारे जो कॉन्सेप्ट है उपनिषद्स के, रामायणा और महाभारत की जो स्टोरीज़ है, ये सारे बहुत उन लोगों को एप्रिशिएशन देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये सब चीज़ें बहुत न्यू है. राइट स्टूडेंट्स? तो इसके वजह से दे हैव रीच्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब ये चीज़ जो है हमारी कल्चर है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये सब चीज़ों का, ये बहुत पुराने टाइम से है और ये चीज़ें बहुत सिखाती है लोगों को. इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज हैविंग द वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ उपनिषद, स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड theoretical methods. And we all know Indian very much famous about the numerical figures and decimal systems also, because Indians have find out the zero, right students? And that's the benefit for the India. So students, we all know that India is having a 29 states, nowadays have been changed 28 states, and they're having a 9 union territories also. So which whatever in your textbook, this one would be the changed 29 states, not 28 states and 9 union territories, because Jammu Kashmir was cancelled it out in the states way, and that have been changed to the union territories, and that have been added 2 union territories more, that is Leh Ladakh and the Jammu. राइट स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता होगा तो मैंने आपको अब बता दिया है स्टूडेंट्स, तो अच्छी बात है, ये चीज़ तो हमें जानना ही चाहिए क्योंकि हम लोग इंडियन हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इंडिया में रहते हैं. दैट्स द पॉइंट स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, now our 3 pages of the chapter 13 is now completed. Later in the next video we will discuss the later 3 pages and then our chapter would be completed students. And one more thing students I wanted to tell you is that your one more time examination is coming behind. Okay students, so you should have to be prepared the science and the mathematics and the SS subjects. So you have to focus on the SS subjects also students. Okay, so students, I will see you in the next video students, and I hope that you have liked my video. So must do it, like, share and subscribe. So students, subscribe my channel. I am so much desperate to know it that way. Okay students, so till then I will see you in the next video. Bye bye with the same topic students. India is our pride students. Okay, so bye and have a nice day students.